Good evening, dear students. Today we'll continue about the another subject that is very much important for us to learn about the microbiology. In earlier classes, I have taken regarding the introduction to microbiology, but today we have to remember because this is the time we have to remind the microbes. Why it is important for nurses to learn about the microbiology. Today we'll go through this detailing about microbiology. So just wait few seconds, again we'll continue. So what is microbiology? Microbiology or microbes or microorganisms are minute living things that are usually unable to be viewed with naked eye. Microbiology is in the subject will study about the microorganism. What is microorganism? It is derived from two words. One is the micros, another is the organism. The organism which cannot be seen our naked eye, only it can be viewed with the help of the microscope. These are so tiny particles or these are so minute living thing that we cannot see our naked eye. That's why we need a compound microscope or electron microscope to see them. Basically, when we want to see them, we need that electron microscope. Okay, that's why this type of organisms is known as microorganism. The organism which are very small cannot be seen in naked eye, and that organism is known as microorganism. Only they can be only viewed with the microscope. So if you will take the examples of the microbes of the microorganism, that is bacteria. Okay, that is bacteria. Another one will be the fungi or fungus. Plural will be the fungi and singular will be the fungus. Protozoan or protozoa. Adi prani in Adi prani. Okay, algae, shaiwala. Okay, viruses are the examples of the microorganism. Or you may say bacteria, virus, protozoa, fungi, and the algae. So these are the examples of the microbes or the microorganism. If you will see these microorganisms, some of them are beneficial to us and some of them are harmful to us. Or some of them they are playing that harmful along with the, I mean, at the time of need they will do some harmful to our body and in sometime they will also do beneficial to our body. Okay, so these are known as microorganisms. Okay, if we will study about the microorganism, if we will study about the microorganism, then that is known as microbiology. It is a branch of medical science that deals with the study of the microorganism. That is known as microbiology. Okay, next come back to, so what is the definition of the microbiology? Microbiology defines as the study of organism too small to be seen with the naked eye. Okay, these organisms include viruses, bacteria, algae, fungi, and the protozoa. Okay, microbiologists are concerned with characteristics and functions such as morphology, cytology, physiology, ecology, taxonomy, genetics, and molecular biology. Those who are studying about the microorganism, they are known as microbiology. Basically, they will deal with morphology and external structures of the microorganism. Cytology, study of cell of that microorganism, that is cytology. Physiology, how they will work. Okay, now the time is going on that one virus that is threatful, that are creating that alarming condition in the world, that is called pandemic SARS-CoV-2. Okay, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Okay, so in that cases we will learn how their bacteria, how that virus, how that algae, how that fungi, how their protozoan they will act, how they are taking their, how performing their digestion, how performing their metabolism, how performing their excretion. Okay, so these are the some of the physiological function of the microorganism. Okay, that can be also studied by the microbiology. Beside that,
study of environment, okay, study of human being and environment, that can be also studied in the ecology. Taxonomy, we will give some taxonomy, one classification will be done. These are eubacteria, these are, okay, man, the archibacteria, man, bacteria will also classify. Viruses will also be classified, gram positive bacteria, gram negative. So which virus is known as gram positive bacteria, mean which bacteria is known as gram positive bacteria, and which bacteria is known as gram negative bacteria. Okay, so these are the some of the examples of the taxonomy, and that can be divided. Okay, bacteriology, okay, so parasitology, parasite will study with the only parasite, that is parasitology. Okay, so these are the examples of the taxonomy. Okay, molecular biology, with the molecular level, up to the molecular level, the biology that deals with the molecular level of the, okay, microorganisms or the organism, that is molecular biology. So next come back to the what is microbiology, study of different microorganisms. Look here, these are the different microorganisms. How the some of the organisms they are having the flagella. Okay, some of them organisms they are having that rod shaped. Some of them are, okay. They mean, you look here, these are the how, okay, brick shaped will get rod shaped. Okay, cocci, cocos, okay, singular is the cocos, plural is the cocci. Okay, so these are rod shaped, spiral shaped bacteria, virus. Spiral shaped basically bacteria will get spirillum. Okay, can be bacteria, viruses, parasite or fungus हो सकते हैं. अगर माइक्रो, if you will see the microorganism, another the microbiology. Microorganism living thing which individually are too small to be seen with the naked eye. All of them following may be considered microorganism. जो लोग हम लोग पहले बोला, इसे हम बैक्टीरिया में लेंगे यू बैक्टीरिया, मीन ट्रू बैक्टीरिया, रक्त है आर्की बैक्टीरिया. फंजाई में लेंगे ईस्ट लेंगे, मोल्ड्स लेंगे, प्रोटोजुआ होगा, माइक्रोस्कोपिक आल्जी होगा, वायरसेस होगा, वेरियस पैरासाइटिक वर्म्स है, जैसे हुकवर्म हुआ. ओके, पैरासाइटिक वर्म्स है, वो भी आपका पैरासाइट्स में आ जाएगा. ये और उसके हिसाब से अगर माइक्रोबायोलॉजी देखेंगे, स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म था, इसके हिसाब से अगर स्टडी करेंगे, इसके बाबत में हम पढ़ना है, तो उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे. सो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी. Among the many specialized fields of microbiology, virology. Okay, in microbiology we will study different branches are there. That is virology. Study of virus is known as virology. Study of fungus is known as mycology. Study of bacteria is known as bacteriology. Study of immunity is known as immunology. Study of microbial microorganisms, study of environment of microorganisms, that is known as microbial ecology. Biotechnological microbiology, with the help of bacteria we can do so many things. Okay, that bacteria virus can be utilized for the purpose of the treating of the different diseases. Okay, for the beneficial to our body we are utilizing them. Okay, we are killing them. For example, taken as a biotechnological microbiology vaccine. Okay, either that may be the killed vaccine or the live attenuated vaccine. Let's come back to the environmental microbiology. That means the microbiology which deals with the environment. How they are living, what kind of environment that microorganisms are favoring. Okay, whether these kind of environment will favorable for the microorganism, is it right or not? You have to go through the environmental microbiology. Another important that is food microbiology. With the help of the microbiology, will help the food processing. I mean how different bacteria, that is lactobacillus. Okay, different that microorganism can be utilized for the purpose of the food process also. Okay, that is called food microbiology. Another forensic microbiology, another molecular biology. So these are the different branches of the microbiology. Let's come back to the themes in the microbiology and its field. So first is the microbiology field. First, what is microbiology field? One will see the basic component, another one will see the applied component. Whenever we'll see the basic components of the microbiology, okay, we'll see by organism, by process, disease related. Or if you will see the organism, that is maybe the bacteria, we'll study about the bacteria, that is bacteriology. We'll study about the, okay, phycon, that is phycology. Okay, fungus, mycology. Study of virus, that is virology. Study of parasite is known as parasitology. Study of protozoa is protozoology. If you will go through the process, that is microbial metabolism, microbial genetics, microbial genetics. If it is disease related, immunology.
Okay, epidemiology, etiology. Etiology means what? Study of causes is known as etiology. So these are the basic themes of the microbiology. And how that microbiology deals with the basic thing. Let us come back to the okay applied process. If it is disease related will study about the infection, how it will spread. Now the time is the corona, how it is spreading from one person to another person. Then in mode of transmission, either that is respiratory droplets. Okay, it is going through the respiratory droplet. If someone is sneezing, someone is coughing, okay, at the same time we come in contact with that person, there may be the chances of the infection of that coronavirus. Control, how it can be controlled? When control of the different bacteria, different viruses, different fungus, different parasite, different protozoa. Chemotherapy, okay, it is also important. Next come back to environmental related, the environmental microbiology I have already told you. Next come back to the industrial, how food beverages will be done. Okay, pharmaceutical microbiology, genetic engineering. Okay, genetic engineering. So these are the some of the examples of the applied microbiology, or we will see these are the branches of the applied microbiology. Okay, microbiology. So what are microorganisms? I have already told you, microbes are product of evolution, consequence of natural selection operating upon the vast area of genetically diverse organisms. In the world, in the universe, there are so many kinds of organisms are living. Other there may be the we can see the organism, we cannot see the microorganism. Okay, then some of the organism we can be see, and some of the organism we cannot be see. Organisms like you will see the you can see the different organisms. Okay, on the other hand, some of the microorganisms will not see in our naked eye. Okay, that is why they are known as microorganisms. So let's come back to the history of microbiology. In 1673 through 1723, Antony von Leeuwenhoek, who was a Dutch microbiologist, who described the live microorganism that he observed in teeth scraping, rainwater, and peppercorn infusion. Okay, for the first time Antony von Leeuwenhoek describe, उन लोग डिस्क्राइब किए कि जो टीथ स्क्रैपिंग में लिया गया, टीथ स्क्रैपिंग में क्या देखने को मिला उनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिला. रेन वाटर में भी उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिला, और एक तो पेपर कॉर्न इन्फ्यूजन में भी उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिला. कोई किस साल में किया गया, किस साल में उन लोग देखे थे? 1673 टू 1723. विद इन दैट पीरियड उन लोग इसको देखे थे. नेक्स्ट कम बैक टू द एंटोनी वॉन लीवेनहोक, फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली सी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दुनिया में पहले आदमी और इंसान है जो कि पहला देखे हैं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये वैसे दिखता था, जो उसको क्या बोल के वो नाम दिए थे? वी एनिमल्स बोल के, WEE, वी एनिमैक्यूल्स बोल के उनको नाम दिए थे. ओके, लेट्स कम बैक टू द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज फर्स्ट टाइम हुआ था, दिखा गया. ओके, जो भी डिजीज होता है उसमें जर्म थ्योरी आपको मैं समझाऊंगा, जर्म थ्योरी क्या है डिजीज का, उसको आपको समझा दूंगा. उसके बाद 1835 में आगोस्टिनो बासी शोड ए सिल्कवर्म डिजीज वाज कॉज्ड बाय फंगस. एक तो जो सिल्कवर्म डिजीज नाम से हुआ था, जो कि फंगस से हो रहा है बोल के, फंगस के वजह से सिल्कवर्म डिजीज हो रहा है बोल के 1835 में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसको देखे थे, जो कि उनका नाम था आगोस्टिनो बासी बोल के. उसके बाद 1865 में लुइस पास्चर बिलीव दैट अनदर सिल्कवर्म डिजीज वाज कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ. ओके, सिल्कवर्म जो डिजीज हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? प्रोटोजुआ के वजह से हो रहा है बोल के 1865 में लुइस पास्चर को बिलीव किए थे. उनको विश्वास हुआ था कि इसके वजह से ये हो रहा है. नेक्स्ट कम बैक टू द 1840 में इग्नास सेमिलिविस advocated hand washing to prevent transmission of puerperal fever from one obstetrical patient to another. Okay, for the first time इग्नास सेमिलिविस बोल के दिखे थे, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, वो देखे थे कि अगर हैंड वॉशिंग करेंगे तो मीन एक ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट थे, दूसरा ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट में जो पुerperal फीवर हुआ है, आफ्टर डिलीवरी उनको बुखार होता है, तो हैंड वॉशिंग अगर करेंगे उन लोग तो एक आदमी, एक ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट से दूसरा, मीन एक डिलीवरी पेशेंट से अनदर डिलीवरी पेशेंट को क्या नहीं होगा? पुerperal फीवर का ट्रांसमिशन नहीं होगा. ओके, कैसे नहीं होगा? जो ऑब्स्टेट्रिशियन रहेगा वो अगर हैंड वॉशिंग कर रहा है तो
होने का चांसेस नहीं है बोल के वो देखे थे 1840 में। लेट्स कम बैक टू द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। 1860 में जोसेफ लिस्टर ओके used a chemical disinfectant to prevent surgical wound infection after looking at pasture was showing microbes are in the air can spoil food and cause animal disease। ओके फास्ट करके जोसेफ लिस्टर जो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोलते हैं, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, वो क्या किए थे, एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज किए थे जो सर्जिकल वुंड होता है। जब फॉर एग्जांपल हम अभी एक पेशेंट का सीएस हुआ है, ओके सीएस मींस क्या है, क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीएस, कौन बोल सकता है? जब पेशेंट को डिलीवरी अगर नहीं होता है, नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी नहीं होता है, उसको सीएस किया जाता है। तो उसी टाइम क्या किया जाता है, अगर वो एक तो सर्जिकल वुंड है कि कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट का अगर ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है कि किसी भी प्रोसीजर अगर ओपन होता है, ओके उसी टाइम अगर सर्जिकल वुंड होता है तो उसको केमिकल डिसइंफेक्टेंट दिया जाएगा उसी एरिया को, जैसे हम इंजेक्शन दे रहे हैं तो केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं। जैसे हम हो गया आइसोप्रोपाइल की मिथाइल आइसोप्रोपाइल हुआ, जैसे हम स्पिरिट पर यूटिलाइज कर रहे हैं और 70% अल्कोहल यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसी जगह को क्या करें, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो मर जाएगा। ओके क्योंकि वहां इसीलिए बोला जाता है कि जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोला जाता है। फॉर दैट रीजन द जोसेफ लिस्टर इज नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। बिसाइड क्या किस लिए ऐसा किए थे जोसेफ लिस्टर, किसी वजह से किए थे, वो देखे थे कि लुईस पास्टर जो काम किए थे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ईआर में भी रहता है, जो हम खाना खाली में रख देंगे, ओके उसको कुछ हम ओपन अगर रहेगा कुछ भी खाना, जैसे आप कुछ भी खाना रखेंगे तो सुबह देखेंगे तो खाना थोड़ा क्या हो जाएगा, बासी टाइप का हो जाएगा, थोड़ा स्मेल होगा, क्योंकि वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया है, जो कि हम खाएंगे तो देयर में भी द चांसेस ऑफ द डिजीज। ओके अगर उसको अच्छा सा कवर नहीं करेंगे तो हमको डिजीज होने का भी चांसेस है, फूड पॉइजनिंग होने का भी चांसेस है, इजंट इट? सो दीज आर द डम थ्योरी ऑफ डिजीज। ओके नेक्स्ट कम बैक टू okay same it will continue Anthony van Leeuwenhoek, okay 1632 to 1723 was the first microbiologist and the first person to observe bacteria using a single lens microscope his own design। okay वो एक पहला इंसान है जो कि सिंगल लेंस में वो व्यवहार करके ओके माइक्रोस्कोप किए थे। नेक्स्ट कम बैक टू द लुईस पास्चर, इनका बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ओके लुईस पास्चर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स माइक्रोबायोलॉजी क्या है। ओके 1822 to 1895 पास्चर डेवलप ए प्रोसेस इन नोन एज पास्चराइजेशन। पास्चराइज मिल्क, जो ओमफेड मिल्क हुआ कि आपका कटक तरफ एक तो मिल्क मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रगति मिल्क है, टू किल माइक्रोज। वहां पर क्या किया जाता है, ये जो प्रोसेस किया जाता है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है। पास्चरेशन कैसे किया जाता है, जो मिल्क है उसको 63 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड हाफ एन आवर के लिए गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। ओके और 73 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। ओके उसके बाद आ जाइए आप रॉबर्ट कोच, ये सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। ओके इसके बारे में हम टॉक पोस्टुलेट पढ़ेंगे इसके बारे में। वाच ए पायनियर इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड वर्क इन कॉलेरा, एंथ्रेक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। रॉबर्ट कोच का भी इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसीलिए कॉक पोस्टुलेट डेवलप किए थे, इसलिए इनको 1905 में इनको नोबेल प्राइज में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट कॉम्बैक्ट टू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ना इनके बारे में सुने होंगे, 1929 में डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। ओके नेक्स्ट कॉम्बैक्ट टू द जोसेफ लिस्टर, इनको बोला जाता है वही चीज में बोला आपको जो बोला था, इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोला जाता है। नेक्स्ट कम द कोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन जनरल, टू स्टडी द मैन, मेरा जो पढ़ने का जो मतलब है, मेरा कोर्स का जो मतलब है ये चीज है आपको, टू प्रोवाइड द नर्सिंग स्टूडेंट विद द बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन जनरल, टू स्टडी द मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोस ऑफ मेडिकल इंपोर्टेंस, टू टीच एसेप्टिक टेक्निक, जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं जैसे इंजेक्शन दे रहे हैं कि जो भी हम कुछ जो एट एनी प्रोसेस, जब भी हम कुछ उसको कैथराइजेशन, मेल कैथराइजेशन फीमेल कैथराइजेशन, जो भी कोई प्रोसीजर हो, ओके जो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं वही भी तो मैंने एसेप्टिक टेक्निक होना चाहिए।
जो भी हम कुछ भी जो दे रहे हैं, at any procedure, whatever the procedure done by us, followed by the that medical professional to provide an understanding of antimicrobial agent, जैसे है आपका जैसे एंटीबायोटिक के बारे में, जैसे आपका मीन जो भी है एंटी माइक्रोबियल आपका, जैसे एंटीसेप्टिक के बारे में पता होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। ओके, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी। ओके, अदर एबिलिटी टू टीच द बेसिक इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल, एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, ओके, कि मैंने कौन सा, मैंने ये सब आपको डिटेल्स बताया दिया जाएगा। इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स फॉर द स्टडी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे आपका कितने सारे डिसऑर्डर्स है, ओके, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। कवरेज ऑफ द सब्जेक्ट जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। ओके, microbes in our life, microorganisms are organisms that are too small to be seen with the unaided eye. Germ refers to rapidly growing cell. Germs का मीनिंग क्या है? ओके, रैपिडली ग्रोइंग सेल, जो सेल वो रैपिडली ग्रो करेगा उसको हम बोलते हैं जर्म बोलते हैं। हमारा शरीर में अगर एंट्री कर गया तो वो उसको मिल गया एक एनवायरनमेंट, अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल गया जो कि उसके लिए सबसे अच्छा है, इसीलिए बोला जाता है कि germs are very dangerous. Okay, next come back to, so it is our medical, okay, it is our microbiology, how environment, हम कैसे healthy रहेंगे, कैसे हम breathe जो ले रहे हैं, everything we have to see about the microbiology. Okay, microbes make the universe. There are greater than 5 into 10 to the 30 types of microbes in the world. याद करो, ग्रेटर देन मीन इससे भी ज्यादा, 5 into 10 to the power 30 नंबर्स ऑफ जीरो यहाँ लगेगा, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स इन द वर्ल्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पृथ्वी में इतना सारा है। ओके, हमको भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, जो हम वायरस है, ये बैक्टीरिया, ये प्रोटोजुआ, इतना खाली पता है, उसके बारे में जितना स्टडी करना खत्म नहीं होगा। कितना सुन याद रखो, 1000 में अगर 3टा सुन लग रहा है, 1 लाख में 5टा सुन लग रहा है, तो याद रखो, मैं 5 into 10 to the power 30 नंबर्स ऑफ, याद रखो कितना होगा, थोड़ा याद कर लो कितना हो सकता है। ह्यूमन से इंटीमेट रिलेशनशिप विद द माइक्रोब, हमारा उसके साथ भी अच्छा रिलेशन है, इंटीमेट रिलेशनशिप बोल सकते हैं, जैसा हमारा एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त का जैसे रिलेशन हो, इंटीमेट रिलेशनशिप रहता है, इसी हिसाब से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी हमारा है। ओके, क्योंकि 90% मोर देन 90% ऑफ द सेल्स इन आवर बॉडी आर माइक्रो, हमको देखने को मिलेगा, जैसे आपका नोज में देखने को मिलेगा, माउथ में देखने को मिलेगा, स्किन में है, कहीं पर भी हम बैठ जाते हैं वहां पर हमको पता नहीं कि वहां पर बैक्टीरिया है कि वायरस है कि प्रोटोजुआ है कि आपका अदर फंगस है, हमको पता नहीं। कहीं भी खाना हमको, कहीं पर भी खाना खा लेते हैं, कहीं पर पानी पी लेते हैं, कहीं पर भी कुछ भी खा लेते हैं, हमको पता नहीं, हम देख नहीं सकते ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब हर चीज में उन लोग में लगे हुए हैं। तुम सोच लो कि हमारा वो दोस्त है। ओके, ये पीपल थिंक दैट दे आर आवर जस्ट लाइक ए दोस्त। ओके, ये नहीं बोल सकते कि वो दोस्त खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। हम इंटेस्टाइन में, अंतरनाली में, लंग्स में, स्टोमक में, कोलन में, कोलन के बारे में सुबह में हम लोग पढ़ाया था, लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि यूनारी ट्रैक्ट में है, भेजिना में भी है, ओके, रेक्टम में भी है। सो कितना है तुम सोच लो, कहीं पर भी नहीं छोड़ते हैं लोग, सर जगह में है। ओके, मैंने ओमिनी प्रेजेंट बोल सकते हैं आप। ओके, सर्वस्व विद्यमान आप सब लोग बोल सकते हैं, इसीलिए उसके साथ हमको अच्छा रिलेशन बनाना है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया नाम से किया गया है, बैक्टीरिया जो आर्की बैक्टीरिया होता है और एक तो यूकेरिया होता है। ओके, यूकेरिया में अगर जिन लोगों का अगर, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया हो कि जो भी वायरस हो, इन अगर बैक्टीरिया के अगर बारे में पढ़ेंगे तो एक तो सेल होता है। ओके, एक तो सेल होता है, क्योंकि जिसका ट्रू न्यूक्लियस रहता है, ओके, उनको बोलते हैं यूकेरियन। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल, ये हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। ओके, यूकेरिया को, जिनका ट्रू न्यूक्लियस रहता है। नेक्स्ट कम बैक टू द नेमिंग एंड क्लासिफाइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। कैरोलिनस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, आप लोगों को तो पता होगा। कैरोलिनस 1735
एस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉग का पूछूंगा किसी को जूलॉजिकल नेम कौन बोल सकता है? एनीवन? व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ डॉग? कैनिस फेमिलियारिस बोलेंगे। एक तो कैनिस अनदर वन द फेमिस। एक तो जेनेरिक नेम, एक तो स्पेसीज नेम बोलते हैं। ठीक इसी हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्लासिफाई किया गया है। ओके, जैसे आप देखो क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, अगर जो बाइक बैक्टीरिया अगर टिटानस करता है उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। ओके, उसी हिसाब से वायरस का, जैसे हम कोरोना वायरस को कोरोना जो कर रहा है उसका नाम क्या है? सार्स कोविड-2 बोल रहे हैं। सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 कर रहा है। एक तो जीनस नेम, एक तो स्पीशीज नेम बोलते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम्स, वन इज द जीनस अनदर वन द स्पीशीज। मैं आप लोगों को बोल चुका हूं। ओके, ऑलवेज जीनस नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर और स्पीशीज नेम स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। आर इटलाइज्ड और अंडरलाइन। हम आप लोग पढ़े होंगे। ओके, जो जीनस होता है उसको अंडरलाइन करते हैं और जो स्पीशीज भी होता है उसको अंडरलाइन करते हैं। अगर अंडरलाइन नहीं किए हैं तो इटालिक में लिख दिए, इटालिक में, तो वो इट्स ओके हो गया। आप लोगों को बोला द जीनस नेम इज कैपिटलाइज्ड एंड द स्पेसिफिक एपिथेट इज द लोअर केस। आप लोगों को बोल चुका हूं। ओके, सो है एग्जांपल जैसे। ओके, जैसे आप लोगों के एग्जांपल कितना सारा ऑर्गेनिज्म है। क्लोस्ट्रिडियम टिटानी के बारे में बोल रहे हैं। जैसे टाइफाइड का हुआ, मीन साल्मोनेला टाइफी हुआ। ओके, मीन कितना सारा ऑर्गेनिज्म का जितना नाम धरो खत्म ही नहीं होगा। ओके, कितना नाम पकड़े हैं? चलो पकड़ ले। HIV का ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और मैंने ह्यूमन डेफिशिएंसी क्या इम्यूनो वायरस बोलेंगे। ओके, एड्स का जो है वो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलेंगे। टीबी का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, और क्या क्या कौन सा डिजीज है? टीबी गया। उसके बाद कोलेरा का विब्रियो कोलेरी होगा। ओके, और कितना कितना बोलो, कितना नाम बोलूं, खत्म ही नहीं होगा। तुम जितना बोलते जाओगी उतना ही ये आगे 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 है। ओके, नेक्स्ट कम बैक टू एडवर्ड जिनर के नाम तो आपको पता होगा, एडवर्ड जिनर। ओके, एडवर्ड जिनर। ओके, सो उसके बारे में पता उनका आपको मैं एक्चुअली डिटेल्स दूंगा। फाउंडर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बोला जाता है लुइस पास्चर को। कंट्रीब्यूटेड बेस्ट इन द माइक्रोबायोलॉजी। ओके, 1922 से 1995 के अंदर ड्यूरिंग द टाइम कंट्रीब्यूटेड बेस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी। स्टेरिलाइजेशन और एक तो डिसइंफेक्शन है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है? जो भी बैक्टीरिया होता है कि जो भी वायरस रहता है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है कि स्पोर फॉर्मिंग वायरस होता है, जो जितना भी जो टाइप का उसका फॉर्म रहो वो पूरा कंप्लीटली मर जाता है। और डिसइंफेक्शन देखेंगे तो स्लाइडली यहाँ कील होता है, यहाँ पर स्लाइडली डिस्ट्रॉय होता है। हॉट एयर ओवन का उनका कंट्रीब्यूशन है। ऑटोक्लेव जो अभी कर रहे हैं मीन ओटी में किया जाता है, जैसा CSSD सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ओके, ऑटोक्लेविंग किया जाता है। एंथ्रेक्स वैक्सीन का इनका कंट्रीब्यूशन है। रेबीज वैक्सीन, आज जो किसी को कुत्ता काट लिया, रेबीज वैक्सीन, ARV एंटी रेबीज वैक्सीन भी बोलते हैं उसको, रविपुर नाम से आता है। रेबीरेक्स भी आता है। ओके, कितना नाम से, बिल्ट इन पास्चर इंस्टीट्यूट, ये सब चीज उनका कंट्रीब्यूशन है। ओके, इनके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे। लुइस पास्चर का क्या है? कॉइन द वर्ड वैक्सीन, फर्स्ट टाइम कॉइन किए थे वैक्सीन नाम से, इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ वैक्सीन जो किए थे, प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स हुआ था। लुइस पास्चर कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। इसको याद रखो डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर वन ऑफ द इंपोर्टेंट थिंग, दैट इज हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ओके, रिमेंबर दिस वन। ओके, रिमेंबर दिस वन। इनको बोला जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ओके, किसको बोला जाता है? लुइस पास्चर को। मैं दोबारा भी पूछ सकता हूं। नेक्स्ट कम बैक टू ओके, कल थोड़ा हम डिटेल्स पढ़ेंगे इसके बारे में। किनके बारे में? लुइस पास्चर के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। हैव ए गुड evening. Okay, followed by the night also. Thank you all.